Good morning, sir. Good morning. Good morning, everyone. Today we'll discuss about registers. Okay. So, Good morning, sir. morning. So, registers are nothing but just a combination of flip flops. Okay. Today we'll complete this portion, and from the next class onwards, we'll go for the second part of the first module. Okay. As I mentioned earlier, also. So, as registers is a combination of flip flops, so that means by register you can store more than one bit. Okay, you people know that register can store single bit. So if you want to store more than one bit, so you have to add more than one flip flops. सर आपका आवाज कट रहा। अच्छा, इधर ना नेटवर्क का बहुत इशू होता है जियो का। हेलो, so due to network issue, I think voice is breaking. Okay, so in the case of register, you are using more than one flip flops. Okay, so I'm just showing you. So register का मतलब just the combination of few flip flops, and the purpose of using it, storing more than one bit. Okay, so as you know, this is one flip flop. Suppose this is one D flip flop. Okay, so this is D flip flop. Okay, so it can store a single bit. Okay, there is a clock. Okay, there is a clock. So D flip flop. So it can store single bit. Okay, so if you use more than one flip flop in that way, suppose यहाँ पे और एक flip flop है, this यहाँ पे इसका आउटपुट में और एक flip flop है, और यहाँ पे और एक flip flop. So it can store 4 bits simultaneously. Okay, so it may be Q0, it may be Q1, it may be Q2, and it may be Q3. Okay,
So these are the Hello, sir. हाँ बोलो So, what's the today's topic? register Flip-flop. register Registers. हाँ Okay, sir. रजिस्टर्स ओके सो दैट मीन्स मान लो यहाँ पे सभी को क्लॉक है ना सभी को क्लॉक तो होना हम दे और नहीं दे यू मस्ट अंडरस्टैंड देयर इज क्लॉक क्लॉक नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा तो मान लो तुम दिए है 1011 ओके तो फर्स्ट क्या होगा ये 1 जो है ओके सो ये पहले आ जाएगा इधर ओके पहले 1 हो जाएगा इनिशियली क्या होगा ऑल आर 0 होगा ठीक है नो डेटा इज फाउंड देन क्या होगा फर्स्ट बीट आएगा फर्स्ट क्लॉक में ये 1 एंट्री मारेगा ठीक है ये 0 था यहाँ आ जाएगा ये 0 इधर चला जाएगा ये 0 इधर चला जाएगा तो दैट मींस 1 0 0 हो जाएगा उसके बाद दूसरा क्लॉक होगा तो क्या होगा ये जो 1 था ये यहाँ पे आ जाएगा सो नॉट टेक वन डिफरेंट कलर तो ये जो 1 था यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे जो 0 था ठीक है वो इधर आ जाएगा यहाँ पे जो 0 था वहां आ जाएगा और ये 1 इधर आ जाने से क्या हो ये ब्लैंक हो गया तो दूसरा जो 1 है वो इधर आ जाएगा तो इस तरह 1 1 0 0 हो गया तो सेकंड क्लॉक में थर्ड क्लॉक में ये भी घुस जाएगा फोर्थ क्लॉक में ये भी घुस जाएगा सो अल्टीमेटली 1 0 1 1 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 1 0 1 1 so 4 bit के लिए how much flip flops you require you need 4 flip flops because you know that single flip flop stores single bit okay so and now this is called serial in one after another value is entering here one after another so this is called serial in and serial out यहाँ से one by one go out so that's why it's called serial in serial out serial out okay so it's a simple सा सर्किट है सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए देखो तुम्हारे पास 1 0 1 बहुत ज्यादा हेलो तो ये 1 0 1 1 डेटा है ओके 1 0 1 1 डेटा तो पहले क्या होगा ये 1 आ जाएगा इधर ठीक है बाकी जो फ्लिप फ्लॉप है यहाँ पे 0 0 रहेगा अच्छा सेकंड क्लॉक में क्या होगा ये पहला वाला जो 1 था यहाँ पे वो इधर आ जाएगा ये गैप हो गया तो दूसरा 1 इधर आ जाएगा सो 1 1 यहाँ पे 0 है यहाँ पे 0 ही है थर्ड क्लॉक में क्या होगा ये 1 जो था इधर आ जाएगा और ये 1 क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा सो 1 1 यहाँ पे क्या है ब्लैंक हो गया सो ब्लैंक में क्या होगा ये 0 आ जाएगा 0 डेटा सो अल्टीमेटली तुम्हारा क्या हुआ 0 1 1 यहाँ पे क्या है 0 है फिर तुम फोर्थ क्लॉक लो तो क्या हो जाएगा ये जो 0 था इधर आ जाएगा 0 बन गया ये जो 1 था इधर आ गया ठीक है यहाँ पे भी 1 था वो इधर आ गया ठीक है सो क्या हो गया 0 1 1 हो गया और यहाँ ब्लैंक है तो ये 1 फाइनली आ जाएगा सो क्या हो जाएगा 1 0 1 ओके सो जस्ट one after another it is moving okay nothing more than that so just clearing it पहले क्या था all the flip flops having 0 0 data now you are trying to push this data okay तो पहले क्या होगा ये इधर आ जाएगा 1 ठीक है और क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 होगा यहाँ पे 0 होगा यहाँ पे 0 होगा पहला डेटा घुसा है इधर नाउ सेकंड क्लॉक में क्या होगा ये घुसेगा तो ये क्या होगा इधर आ जाएगा ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप आउटपुट में जाएगा ये फाइनल आउटपुट में जाएगा सॉरी ये 0 होगा 0 और ये क्या है ये 1 इधर आ गया तो ये ब्लैंक हो गया तो ब्लैंक में क्या घुसेगा ये दूसरा 1 आ गया तो तुम्हारा क्या हो गया ये 2 1 घुस गया देखो 1 1 0 ठीक है
फिर तुम क्या करोगे, थर्ड पार्ट लोगे तो क्या होगा, देखो ये जो 1 था इधर आ जाएगा, ये जो 1 है इधर आ जाएगा, और यहाँ भी 0 है, 0 इधर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो ये ब्लैंक हो गया पहला वाला में, हर टाइम पहला वाला ब्लैंक होगा क्योंकि वो दूसरा फ्लिप फ्लॉप में जहाँ चला जाएगा, तो ये क्या होगा, 0 0 घुस जाएगा। सो अल्टीमेटली 0 1 1, देखो 0 1 1 जो है 0 1 1 घुस गया है। फिर तुम दूसरा क्लॉक लेने से क्या होगा, ये 0 सेकंड फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट में चला जाएगा, ये थर्ड में चला जाएगा, और ये फोर्थ में चला जाएगा, और फास्ट फास्ट फ्लिप फ्लॉप ये क्या है, ब्लैंक हो गया। ब्लैंक में क्या घुसेगा, ये 1 घुसेगा। सो अल्टीमेटली देखो 1 0 1 1 यहाँ पे स्टोर हो गया। सो 1 क्लॉक में as it is moving serially, so number of clocks you record here 4, as 4 bit stored here. So this is the case. समझ गया ना? So this is the way you can store the data. यस सर। हाँ, सर बस शिफ्टिंग ही हो रहा है ना सर यहाँ पे। shifting हो रहा है, simple shift register, इसलिए इस called shift register also. Okay, यस सर। SHIFT, shift register. Okay, don't worry. ये कुछ तुम्हारा सीओ में काम में आएगा, इसलिए कुछ कुछ चीज यहाँ पे रिकैपिटुलेशन हम लोग कर रहे हैं। तो देखो ये सिंपल सा है लॉजिक डायग्राम फॉर ए 4 बिट बफर रजिस्टर। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, देखो ये मैंने पहला वाला जो दिखाया था, द फर्स्ट वन वाज सीरियल इन सीरियल आउट। ओके, बट हियर देखो एक साथ में सिंगल क्लॉक में ऑल द 4 बीट विल एंटर हियर, क्योंकि x1 इनपुट में d1 में चला जाएगा, x2 d2 में चला जाएगा, x3 d3 में चला जाएगा, x4 d4 में चला जाएगा, एंड विद इन ए सिंगल क्लॉक देखो the all the clocks are coupled together, and then for a single clock as soon as you are giving the clock, so d1 q1 में चला जाएगा, d2 q2 में चला जाएगा, d3 q3 में चला गया, and d4 q4 में चला जाएगा। So using only single clock you are having the full scale of data. Okay, but previously we need few more clocks, 4 clocks for 4 bits. Okay, and you are taking the data from, okay, correct. So this is one kind of registers. Okay, So this is parallel in, parallel out. parallel in, parallel out, you can say it's parallel in, and you can take by single clock out here, even from there, Yes this sir। and this and this. So it is, you can say parallel in, parallel out, but previously that was serial in, serial out. तो बहुत सारा फ्लिप फ्लॉप होता है। हाँ, ये भी और एक है, एक कंट्रोल रजिस्टर। ओके, तो उससे पहले कुछ इजी था, ठीक है। तो बेसिक चीज तो हमें दिखाया तुमको। तो देखो ये कंट्रोल बफर कैसे होता है। सर आपका बहुत नॉइज आ रहा है सर। हाँ, ये मेरे माइक कुछ से। नेटवर्क इशू है, बीच में ये लिख रहा है नेटवर्क नेटवर्क नहीं सर, आपका माइक पूरा वाइब्रेट कर रहा है। माइक वाइब्रेट कर रहा है। यस सर, नॉइज आ रहा है उससे। अच्छा 2 मिनट दो तो।
अच्छा हेलो, सुनाई दे रहा है? यस यस सर। सर, आ रहा है सर। ठीक ठाक? हाँ सर, अब नहीं आ रहा। यस सर, क्लियर आ रहा है सर। अच्छा अच्छा, तो कॉलर हेडफोन था शायद, उसे ऑफ करके ऑन कर दिया, कुछ प्रॉब्लम था शायद, वो भी हो सकता है। नाउ लिटिल बिट क्लियर ना? तो सर कंप्लीटली क्लियर सर। अच्छा, थैंक यू। वो हेडफोन का ही कुछ शायद प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे देखो, and once again I want to thank you, all of you, because you have listened my talk yesterday. I told you to join the class. Okay, so thank you everyone. But one thing I want to mention here, yesterday we had one meeting. Okay, और एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे ऑफलाइन क्लास के लिए हम बताया था, मीटिंग करवाया था। तो थोड़ा ऐसा आया, तुम्हारा दिवाली है और छठ पूजा भी है, उसके बाद तुम्हारा कुछ एलाइनमेंट होगा, ठीक है? उसके बाद वो कुछ होगा शायद। तो प्रिंसिपल मैम ने बोले, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कुछ एटलीस्ट लैब को ऑफलाइन में और थ्योरी ऑनलाइन होगा तो भी चलेगा, ठीक है? तो इस तरह कुछ बात हुआ, तो आई थिंक विल डेफिनेटली गिव यू बेटर न्यूज। ओके, सो डोंट वरी। तो तब तक तुम थ्योरी को आगे बढ़ाओ, ठीक है? उसके बाद हम लोग डेफिनेटली एचओडी आर आल्सो दैट you people must communicate with HOD also. Okay, that will be better because HOD is departmental head, so everyone will cooperate with you, don't worry. Okay. तो सर आज ओके। हाँ। सर जैसे कि अगर हॉस्टल हम्म, खुल भी जाए तो उसके पहले तो अलॉटमेंट होता है ना सर, इसमें भी हाँ बहुत हाँ, ये टाइम लग अलॉटमेंट जाता है होगा। अगर। हाँ हाँ, अलॉटमेंट होगा, ये बोला ना, अलॉटमेंट होगा। फाइनल ईयर का कुछ अलॉटमेंट शायद चल रहा है, वो हॉस्टल वार्डन जो है ना, वो लोग ये डिटेल बोल सकता है। तो वो नीलेश सर है ना, वो लोगों के लिए नीलेश सर वार्डन है। तो बस मेरा जो इन्फॉर्मेशन है शायद फोर्थ ईयर का हो रहा है, और बीच में कुछ प्रॉब्लम था, वो लोग आ गया और अलॉटमेंट नहीं लिए, इस तरह कुछ प्रॉब्लम था, तो उसी से कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो इस वजह आई थिंक ड्यू टू दैट मे बी यू आर डिलेड। ओके, सो दैट्स बट पूजा के बाद आई थिंक मैम का वॉइस जो था कल बात जो था शुरू हो जाएगा, ठीक है? और हम 2-3 दिन हम नहीं रह पाएंगे। तो आज जो तुम्हारा डिजिटल कम्युनिकेशन का जो क्लास है ना, वो आज थोड़ा हम बहुत बिजी रहेंगे, तो हम नेक्स्ट वीक में किसी की टाइम पर वो एक्स्ट्रा हम दे देंगे, ठीक है? तो चलो ये हम सर बट कोशिश करते हैं। ऑफिशियली नोटिस तो निकाल देता ना सर कि पूजा हाँ, के बाद खुल जाएगा, नोटिस। और एचओडी भी कोई रिप्लाई नहीं देते हाँ, हैं। अच्छा तुम, हाँ हाँ, तुम एक काम करो, एचओडी को बोलो, नोटिस शायद निकल जाना चाहिए। सर तो एचओडी को मैसेज किए हैं, सर ये एचओडी को है, बहुत एचओडी को मैसेज किए, मैसेज तीन किए चार बार बट वो किए, सीन रिप्लाई करके नहीं छोड़ कर देते रहे। हैं। अच्छा अच्छा, शायद आज तुम कर सकते हो। कल तो थोड़ा बहुत हुआ है। सर बस हम सर लोग का इतना एचओडी ही सर डिमांड है बोलते कि हैं कि पूजा से पहले हम लोग का बस हॉस्टल अलॉटमेंट करके फिक्स हो जाए कि इस डेट को हम लोग को पहुंचना है, क्योंकि ऐसे भी छठ के बाद ही सब कुछ जाएगा, क्योंकि दीपावली है, छठ है, तो हाँ बस हाँ, उससे तो पहले, वो क्योंकि तुम्हारा अगर छठ अलॉटमेंट के बाद शायद। ये सब प्रोसेस स्टार्ट होगा। वही 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 बात है। तो मैम को बोला था, बोल गया है, तो देखते हैं क्या है। आज हम इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एचओडी लोग तो इधर ही रहेंगे। डिपार्टमेंट का स्टूडेंट का तो एचओडी का डायरेक्ट बात होता है, तो तुम लोग नहीं है, मतलब सब डिपार्टमेंट को जो है एचओडी के साथ बात करो, ठीक है? और आई थिंक नोटिस निकलना चाहिए था। आज शायद मैडम नहीं रहेगा, जेयूटी में कुछ काम है, ठीक है? आज सुबह चली जाएगी, आज शाम तक आएगी, समझ गया ना? तो आज शायद नोटिस फोटिस नहीं, मैम का कुछ काम है जेयूटी। नहीं सर, मैम मैम बहुत डिले कर रही है। एक तो बोली कि दुर्गा पूजा के बाद नोटिस निकालेंगे, फिर बोली नहीं नहीं, 22 को निकालेंगे, ये फिर सर बोली बस एक 25 को नोटिस निकालेंगे। निकाल देती कि हॉस्टल अलॉटमेंट हाँ हो जाएगा, हाँ, उसके तुम बाद लोग भी इतना कन्फ्यूजन वो में हो, भी नहीं हो ठीक। पा रहा है। हम्म। तो सर ठीक है। छठ के बाद बहुत स्टार्ट अच्छा करेगी गया तो भी था सर। नवंबर निकल जाएगा, यही सब में सर फिर नहीं नहीं नहीं, सर तुम्हारा दिसंबर आ क्लास जाएगा। कंटिन्यू कीजिए। लैब सुनो ना, लैब तो
ऑफलाइन होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा मेरे ख्याल में। जो है थ्योरी लगभग सर तो फर्स्ट भी ईयर चलता का है। क्लास 30 नवंबर से स्टार्ट है सर। क्या? सर AICTE एआईसीटी बोल से चुका कल है। न्यूज भी आया है कि 30 नवंबर से फर्स्ट ईयर का क्लास स्टार्ट हो जाना चाहिए, और हम 30 लोग का ही नवंबर अभी से? प्री फाइनल ईयर में, लेकिन यस सर फर्स्ट ईयर का जो न्यूली एडमिशन है हाँ उन हाँ हाँ, लोग वो के तो लिए चल रहा है। अभी अपडेट आया है। तो ठीक है, बाद में हम थोड़ा क्लास आगे बढ़ाइए। मेरा तुम्हारा तो बात तो मेरा ख्याल में है, हम जानते हैं। हम तो तुम लोग नया नहीं कुछ बोल रहे हो, मेरा मालूम है। तो ये चल रहा है काम जितना जल्दी सर हो वो सके। प्रॉब्लम नहीं है, अब थर्ड ईयर में हम्म। प्लेसमेंट होगा तो कोई हम लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज है नहीं, तो हम लोग इंटरव्यू में हाँ क्या हाँ, तो बोलेंगे तुम सर? बोल चुके हो बार बार। मैं मेरा भी तो देखो ना, प्रैक्टिकल नहीं होगा तो दिक्कत का बात है। क्योंकि फोर्थ सेमिस्टर हो गया ठीक है, लेकिन फिफ्थ में तो बहुत सारा सब्जेक्ट भी आ गया। हाँ, और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पेपर भी है, सर तो लैब होना बताए तो सर चाहिए। हम लोग को लिखने का आदत भी छूट गया सर, एग्जाम तो दे ही हाँ रहे हैं, बस हाँ हाँ प्रमोट हो ही जा रहे हैं। हाँ, यस ये इस सर, बार। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, बाकी थ्योरी में तो सब टॉपर है सर। ठीक सब ठीक। थ्योरी में थ्योरी का जेईई बात के ही सर, टॉप सर एक पे जैसे है। कि होता है मेंटेलिटी ना भी बैठ एक, गया है सबका कि इस ईयर में जो पास आउट हुआ है उन लोग ऐसे ही पास हो, तो सर वो भी तो इफेक्ट करेगा ना हम लोग का। ये सर हम्म। एक प्रेशर नहीं बन पा रहा है। ठीक ठीक, वो सही बात है। तो ठीक है, शुरू करते सर हैं। प्लीज कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। यस ओके सर, प्लीज सर। कंटिन्यू। हाँ हाँ हाँ। तो देखो ये जो है कंट्रोल कंट्रोल रजिस्टर है, क्योंकि देखो यहाँ पे लोड बोल के एक पॉइंट है। तो एबव लाइन इज देयर एंड नीचे में भी और एक लाइन है। तो लोड, दिस इज लोड बार बेसिकली एंड दिस इज लोड, लोअर लाइन इज लोड। तो लोड कहाँ कनेक्टेड है? दिस गेट, दिस गेट, दिस गेट एंड दिस एंड गेट। सो लेफ्ट साइड में जो एंड गेट है वहां पे लोड कनेक्टेड है, राइट साइड में जो गेट है एंड गेट है वो लोड बार कनेक्टेड है। सो एज दिस इज एंड गेट, सो इफ वन इनपुट इज हैविंग जीरो, so that means output always be zero. So when the left AND gate is giving high value, so right always it will give you zero value, because simultaneously दो AND gate on नहीं होगा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है। तो let us start x1 x2 x3 x4 inputs are there, those are connected with each and every AND gate, those are at left side। देखो ये लेफ्ट साइड में x1 है, लेफ्ट साइड में x2 है, लेफ्ट साइड में x3, दिस लेफ्ट साइड में x4 है। तो क्लॉक इज प्रेजेंट, मान लो क्लॉक इज प्रेजेंट, क्लॉक दिया है, क्लॉक इज ऑन। तो क्या होगा? इफ यू अप्लाई हियर लोड इज इक्वल टू 1, ओके, लोड इज इक्वल टू 1 मींस लोड इज इक्वल टू हाई। तो दिस एंड गेट, दिस एंड गेट, दिस एंड गेट, दिस एंड गेट, लेफ्ट साइड एंड गेट आर ऑन। सो x1 विल कम अप हियर एंड गेट का आउटपुट में, और गेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे x1, यहाँ पे 0, सो अल्टीमेटली d1 इज इक्वल टू x1, सो q1 इज इक्वल टू x1, करेक्ट। सिमिलरली x2 d2 में आ जाएगा, और x2 इज इक्वल टू q2 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। Similarly, x3 through this AND gate, through this OR gate, it will come up to d3, and as soon as you are applying clock, so q3 is equal to d3 हो जाएगा। Ultimately here also q4 is equal to q4 is equal to x4 हो जाएगा। So as soon as you are applying the clock, single clock, and ultimately we are getting all the outputs x1, x2, x3 and x4 for a single clock. So it's a kind of paralleling. Okay, now what happens if you make load is equal to low now, load is equal to low now, okay, so low मतलब क्या हो जाएगा? the left side का AND gate ऑफ हो जाएगा and right side का जो AND gate है वो खुल जाएगा। तो क्या होगा? देखो सर यहाँ पे वैसे देखो, में भी तो और ही सर और हाँ गेट है बोलो। तो हम लोग को तो इसमें हाई ही मिलेगा ना सर। हाँ, और गेट में देखो एनी वन इनपुट वन होगा तो वन, और गेट का मतलब वही है। यहाँ पे x1 और 0 आ रहा है, तो आउटपुट में x1 है, एडिशन हो रहा है, लॉजिकल एडिशन। यहाँ पे x2 एंड 0 तो x2, यहाँ पे x3 एंड यहाँ से 0 तो x3, यहाँ पे x4 एंड फ्रॉम दिस गेट यू आर गेटिंग 0 सो x4, सो अल्टीमेटली x4। तो नाउ लोड इज इक्वल टू, तुम 0 करोगे तो क्या होगा? देखो लोड इज इक्वल टू 0 इस बार,
तो क्या होगा, एक Q4 देखो यहाँ पे आ जाएगा, इस Q4 फिक्स रहेगा यहाँ पे, ठीक है, लॉक टाइप का। और देखो तुम इनपुट को नहीं चेंज कर सकते हो क्योंकि दिस एंड गेट इज ऑफ नाउ। यहाँ पे क्या होगा, देखो Q3 इधर आके दिस एंड गेट में जाके और गेट में आके यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा। सो यहाँ पे Q3 लॉक्ड है। यहाँ पे Q2 जो माउस पॉइंटर हो देखो, यहाँ पे Q2 रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, Q1 रहेगा। So that's why it is called controlled. You are controlling. You can have the data for a fixed time. You can log the data for a finite interval of time, making load is equal to low. Okay. So that's why this is called logic diagram of 4-bit control buffer register, because you are controlling whether you are taking input or not. Okay. So somehow this data is changed to some other value, but that effect will never go into the registers because this left side का जो end gate है, those are off now by making load is equal to 0. As load is equal to 0, देखो ये lower line में 0 आ गया, so this end gate is off, this end gate is also off, this gate is also, this end gate also off. So that is called logic diagram of control buffer register. So control क्यों है control? बेसिकली सर कंट्रोल बोलो। बफर रजिस्टर का हम लोग यूज क्यों करते हैं? ये हम लोग मान लो कहाँ पे तुम्हारा डेटा, कुछ डेटा मान लो 1011, ये फिक्स डेटा, you have to keep it for finite duration because over those data you are having some sort of logical, maybe arithmetical operations. Okay, so sometimes before completion of that operation somehow input में x1 x2 x3 x4 का वैल्यू चेंज हो गया, तो क्या हो जाएगा, वो नया वैल्यू आ जाएगा, प्रीवियसली जो था वो तो सप्रेस हो जाएगा, है ना, तो रिजल्ट में तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए तुम क्या कर रहे हो, पहले लोड को हाई करो, डेटा तुम्हारा जो डिजायर डेटा है वो कलेक्ट कर लो, उसके बाद लोड को तुम ऑफ करो, तो क्या हो जाएगा, प्रीवियसली जो डेटा तुम लिए थे वो लॉक हो गया, लॉक्ड हो गया, वो चेंज नहीं होगा until and unless you are again making load is equal to high. So that is you can control. So your input जो डेटा है तुम कंट्रोल कर सकते हो whether you are taking or not as per your choice. So that's why you are controlling the input data, okay, whether it will go into the register or not. So that's why we are using control buffer. So whenever we are go for some sort of ALU operations, so over there we can use this sort of registers. Okay, so this is the purpose, nothing more than that, just to control the input. Okay, ये तो मैंने बोल दिया, ये सीरियल इन सीरियल आउट सिंपल सा है, देखने में तुमको आसान हो जाएगा। इधर है, हाँ, ये सीरियल कहाँ है, शिफ्ट रजिस्टर, ये देखो राइट साइड तक जा रहा है, ये लेफ्ट में जा रहा है, ये सीरियल इन हो रहा है। हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ तो सर बोलो। वो क्लियर नहीं हुआ सर, बफर रजिस्टर वाला। ये वाला सर अभी नहीं सर, इससे पहले जो आप बता रहे थे डायग्राम वाला। कौन बाबू? ये वाला सर यही सर, इसका ये यस सर। सर कंट्रोल नहीं बफर सर। रजिस्टर बोल रही है। अच्छा, कंट्रोल तो यही है बाबू, ये वाला कंट्रोल, ये वाला। यस सर, ये क्लियर नहीं हुआ सर, मतलब समझ में नहीं अच्छा आ रहा है इसका। अच्छा, वेरी गुड। तो कहाँ क्या प्रॉब्लम बोलो, ऑपरेशन में कैसे ये ऑपरेट हो रहा है? सर ये सर इसका डायग्राम जो है ना सर, इसका जो मतलब वर्किंग है ये नहीं समझ में आ रहा है, ये कैसे क्या हो रहा है। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ। देखो सिंपल है, एकदम सिंपल है, वेरी सिंपल। देखो यहाँ पे दो लाइन है, कंट्रोल लाइन, ठीक है। ऊपर वाला क्या है, यहाँ पे लोड होगा इनपुट में, तो ये लोड बार और नीचे वाला लोड है। मतलब क्या है, लोड इज इक्वल टू, जब हाई होगा लोड इज इक्वल टू हाई, तो ये बाबेल है, तो ऊपर लाइन क्या होगा, जीरो होगा ना, बोलो, जीरो हो जाएगा, और नीचे तो हाई है। यस सर। हाँ, तो देखो ये लाइन कहाँ कहाँ कनेक्ट है, दिस एंड गेट, दिस एंड गेट में, दिस एंड गेट में, एंड दिस। सो इफ यू मेक लोड इज इक्वल टू हाई, तो ये राइट साइड को जो एंड गेट है ये वाला, ये एंड दिस विल बी ऑफ। व्हाई इट इज ना, बिकॉज जीरो इज गेटिंग हियर, सो आउटपुट में जीरो मिलेगा ऑलवेज। सो दिस एंड गेट का आउटपुट में जीरो है, जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, एंड यहाँ पे जीरो। राइट साइड में जो एंड गेट है उसका आउटपुट में जीरो मिलेगा।
तो लेफ्ट में क्या होगा, देखो लेफ्ट में तो 1 मिल रहा है, यहाँ पे लोड से 1 मिल रहा है, तो दिस एंड गेट राइट लेफ्ट का, ये लेफ्ट का, ये लेफ्ट का, ये 1 इनपुट में हाई मिल रहा है, और दूसरा इनपुट में x1 है, तो आउटपुट में क्या होगा, x1 इंटू 1 तो x1, यहाँ पे x2 इंटू 1 x2, यहाँ पे x3 इंटू 1 x3, यहाँ पे x4 इंटू 1 x4। तो यहाँ पे दिस एंड गेट में x1 मिल रहा है, यहाँ पे x2 x3, यहाँ पे x4 मिल रहा है। और गेट के इनपुट में क्या क्या जा रहा है, x1 एंड इधर 0, लिसन केयरफुली, इधर x1 फ्रॉम दिस एंड गेट 0, तो और गेट का आउटपुट में क्या होगा, x1 होगा। ओके, 1 हाँ x1, तो ये x1 जब तुम क्लॉक अप्लाई करोगे तो D1 का डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, इनपुट में जो होगा आउटपुट में वही होगा, तो Q1 इक्वल टू x1 हो जाएगा। सिमिलर काइंड x2 यहाँ पे और गेट थ्रू एंड गेट से और गेट थ्रू D2 में आ जाएगा, एंड x2 में वो क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद वो x2 Q2 इक्वल टू x2 हो जाएगा, क्योंकि दिस एंड गेट में 0 है, इधर x2 है, और गेट का मतलब क्या है, एटलीस्ट 1 इज यहाँ पे 0 है, तो x2 प्लस 0 x2 ही होगा, अगर x2 1 होगा तो ये आउटपुट 1 होगा, x2 0 होगा तो 0 होगा, तो उसका हम लोग लेना देना नहीं है, x2 इधर आ गया तो Q2 में x2 हो गया। सिमिलरली इस एंड गेट में x3 मिलेगा और दिस एंड गेट में 0 मिलेगा, सो 0 प्लस x3, D3 में x3 मिलेगा, सो Q3 इक्वल x3 हो जाएगा। सिमिलरली बाबू यहाँ पे x4 आ जाएगा, इधर से 0 हो जाएगा, सो x4 प्लस 0 क्या होगा, x4 होगा, सो Q4 इक्वल टू x4 हो जाएगा इन दैट वे। तो अल्टीमेटली क्या मिला, ए Q1 इक्वल टू x1, Q2 इक्वल टू x2, Q3 इक्वल टू x3 एंड Q4 इक्वल टू x4। तो ये तुम्हारा डेटा इन हो गया। ना मान लो ये डेटा तुम फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए लॉग करना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे, सो लोड इज इक्वल टू 0, नाउ मेक लोड इज इक्वल टू लो। तो लोड 0 होने से क्या हो जाएगा, ऊपर लाइन देखो हाई हो गया और नीच लाइन क्या हो गया, 0 हो गया। तो नीच लाइन 0 होने से क्या हो जाएगा, दिस एंड गेट नाउ ऑफ, आउटपुट ऑलवेज 0, दिस इज ऑल्सो ऑलवेज 0, दिस एंड गेट इज ऑल्सो गिविंग ऑलवेज 0, दिस इज ऑल्सो ऑलवेज गिविंग 0। तो इसके बाद क्या होगा, ये जो Q1 था तुम क्लॉक अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे दिस पाथ ही फॉलो करेंगे, ये घूम रहेंगे यहाँ पे, Q1 दिस एंड गेट में जाएगा, दिस इज 1, दिस इज Q1, सो और गेट में आएगा, देन फिर आउटपुट में जाएगा, तो ये Q1 ऑलवेज x1 होगा, ऑलवेज यहाँ पे x1 होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे ऑलवेज x2 होगा, दिस पाथ Q2 दिस एंड गेट थ्रू दिस और गेट, देन दिस इनपुट में फिर आउटपुट में चला जाएगा, ये होगा। तो यहाँ पे भी x3 इधर घूम रहेगा, ठीक है, दैट मीन्स द डेटाज आर फिक्स्ड फॉर दिस एंड गेट, दिस फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पे Q4 घूम रहेगा, तो दैट इज योर कंट्रोल बफर, दैट्स व्हाई द डेटा इज remain fixed for a finite duration until and unless again you are making load is equal to high. When load is equal to high, the new data come into the consideration, otherwise not. When load is equal to low, so that data which was previously collected or stored that remain sustained for finite duration. Okay, बोलो इस बार कुछ डाउट है तो बोलो। नो सर, क्लियर। सर इसका हाँ, बोलो। यूज हम लोग कहाँ करते हैं, मतलब हाँ, मतलब ये क्या होगा, कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, देखो, हाँ मतलब देखो, जैसे कि सर्किट में मान लो तुम दो डेटा को ऐड करना चाहते हो, ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, डिवीजन भी कर सकते हो, है ना। तो उसके बाद उस डेटा को लेके तुम कुछ फाइनल डिसीजन तुम ले सकते हो, ठीक है, रिजल्ट, वो जो रिजल्ट होगा उसके बाद कुछ तुम डिसीजन भी ले सकते हो, वो सम कंट्रोल ऑपरेशन तुम कर सकते हो, कुछ डिवाइस भी तुम रन कर सकते हो। तो ये क्या है, ये सम पार्ट ऑफ द बिग प्रोग्राम। तो यह क्या होगा, तुम्हारा जो डेटा तुम ले रहे हो वो डेटा बीच में चेंज हो गया, ठीक है ना। मान लो तुम 1011 ले रहे थे, उसके बाद वो क्या हो गया, बिफोर कंप्लीशन ऑफ द ऑपरेशन वो डेटा चेंज हो गया। तो चेंज होने से क्या हो जाएगा, रिजल्ट तो तुम्हारा
दूसरा आ जाएगा, तो तुम उसके रिजल्ट के आधार पर जो तुम डिसीजन ले रहे थे तो वो गलत हो जाएगा। सो दिस सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म में बी डन हियर, ओके। और इसका जो यूज है रजिस्टर का, और जो जितने सारे यूज है बाद में हम लोग और डिटेल हम देखेंगे। रजिस्टर का बहुत सारे ऑपरेशन हम करेंगे, रजिस्टर एडिशन, रजिस्टर, डेटा ट्रांसफर, बहुत सारा ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है यहाँ पे। तो दैट इज वन काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ यूजिंग दिस रजिस्टर। और बफर क्या होगा, तुम फ्यू डेटा मान लो ट्रांसफर कर रहे हो, इनपुट एक डिवाइस है, आउटपुट भी एक डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस, ठीक है, और इनपुट डिवाइस में फर्क है, स्पीड का फर्क है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए, हाँ, वो बफर में तुम उसको स्टोर रखना चाहते हो, क्योंकि वो जो आउटपुट डिवाइस वो फ्यू स्लोअर है। सो स्लोअर तो क्या होगा, वो डेटा धीरे धीरे वो कलेक्ट करेगा। तो दैट्स व्हाई यू मे हैव टू कीप ऑल दोस डेटा फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन until and unless the output device taking all those data. So for that purpose also ये buffer can be used, okay, okay, for finite Sir, duration you, हाँ बोलो। सर इनपुट एंड आउटपुट में सर स्पीड का डिफरेंस क्या है सर, मतलब समझे नहीं सर। अरे देखो, तुम्हारा तुम्हारा तो माइक्रो प्रोसेसर पढ़ चुके हो ना। यस सर। तो माइक्रो प्रोसेसर देखो, माइक्रो कंट्रोलर जो माइक्रो प्रोसेसर होता है बहुत फास्ट होता है, और पेरिफेरल्स जो होता है, पेरिफेरल्स ओके मींस इनपुट आउटपुट डिवाइस वो बहुत स्लो होता है, तो मैच नहीं करता है स्पीड का, ठीक है ना, क्योंकि ये फास्ट डेटा ट्रांसफर करेगा, ओके, बट ये उतना स्पीड में वो मान लो 4 बीट्स पर सेकंड, ठीक है, और 10 बीट्स पर सेकंड माइक्रो प्रोसेसर भेज रहा है, लेकिन ये 3 बीट्स पर सेकंड ये कलेक्ट कर रहा है। तो बीच में क्या होगा, बफर नहीं दोगे तो क्या होगा, वो जो बीट था ना बीच में वो छूट जाएगा। इसलिए क्या होता है, ये प्रोसेस रहता है स्लोअर पेरिफेरल्स और हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर बीच में सम बफर मैकेनिज्म कैन बी डन। तो बफर रजिस्टर रहता है वहां पे, वो बफर में वो डेटा फॉर द मोमेंट वो स्टोर होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ मैकेनिज्म, बफर मैकेनिज्म, ओके, with the higher speed with the lower speed devices. Peripherals always slower,